یمن کی سرزمین پر عدل و انصاف کا سورج طلوع ہو چکا تھا۔ شہزادہ سیف نے اپنے باپ کا تخت واپس لے کر مظلوموں کے سر پر دست شفقت رکھا، لیکن یمن کی ان پرسکون ہواؤں کے پیچھے ایک ایسا طوفان چھپا ہوا تھا جس سے سلطان سیف خود بھی بے خبر تھے۔ السلام علیکم ناظرین، اردو قلم راز پر خوش آمدید۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ دور ایک گمنام جزیرے کی تاریخ غار میں جہاں انسان کا قدم پڑتے ہی روح کانپ جائے، جادوگرنی عجوزہ غصے میں پاگل ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے جادوئی پیالے میں سیف کو تخت پر بیٹھے دیکھا۔ اس کی چیخوں سے غار کی دیواریں لرز اٹھیں۔ اس نے عہد کیا، اے سیف، تو نے میرے حبشی بادشاہ کو عبرت کا نشان بنایا، اب میں تیرے یمن کو قبرستان بنا دوں گی۔ عجوزہ نے اپنی شیطانی طاقتوں سے سمندر کے دیو قامت جنات کو بیدار کر دیا۔ یمن کی بندرگاہ کی طرف ایک ایسا کالا جہاز بڑھ رہا تھا جس پر کوئی انسان نہیں بلکہ جادوئی سائے سوار ہیں۔ دوسری طرف یمن کے محل میں سلطان سیف کو ایک عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسی دیواریں اس سے کچھ کہہ رہی ہیں۔ یہ محض وہم تھا یا کسی نئی بڑی مصیبت کا پیش خیمہ؟ یمن کے شاہی محل میں جشن کا سماں ابھی ختم نہیں ہوا تھا کہ اچانک فضا میں ایک کالے رنگ کا عقاب نمودار ہوا۔ یہ کوئی عام پرندہ نہ تھا بلکہ اس کے پروں سے سیاہ دھواں نکل رہا تھا۔ وہ عقاب سیدھا سلطان سیف کے دربار میں گرا اور ایک جلتے ہوئے خط میں تبدیل ہو گیا۔ درباری خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئے، لیکن سیف نے جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس خط کو اٹھایا۔ خط کھلتے ہی جادوگرنی عجوزہ کی بھیانک آواز پورے دربار میں گونجنے لگی۔ اے سیف، تو نے یمن کی مٹی پر تو قبضہ کر لیا، لیکن یاد رکھ کہ یمن کا سمندر اب بھی میرے قبضے میں ہے۔ اگر ہمت ہے تو اپنے ان یمنی سوداگروں کو بچا لے جن کے جہاز میں نے بیچ سمندر میں قید کر لیے ہیں۔ اگر 7 دن کے اندر تو نے میری شرط نہ مانی تو یمن کا ہر سوداگر مچھلیوں کی خوراک بن جائے گا۔ سیف کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے اسی وقت اپنے وزیروں کو حکم دیا، یمن کا سب سے مضبوط بحری بیڑا تیار کیا جائے۔ درباریوں نے منع کیا کہ سمندر میں جادوگرنی کا مقابلہ کرنا خودکشی ہے، لیکن سیف نے بلند آواز میں کہا، جو سلطان اپنی رعایا کے مال اور جان کی حفاظت نہیں کر سکتا، اسے تخت پر بیٹھنے کا کوئی حق نہیں۔ میں خود اس مہم کی قیادت کروں گا۔ اگلی صبح سیف بن ذی یزن ایک عظیم الشان جہاز پر سوار ہو کر یمن کی بندرگاہ سے روانہ ہوا۔ ابھی جہاز گہرے پانیوں میں پہنچا ہی تھا کہ اچانک سمندر کا رنگ کالا پڑ گیا اور پانی کے اندر سے دیو قامت جادوئی لہریں اٹھنے لگی۔ جہاز کے ملاحوں نے چیخنا شروع کر دیا کیونکہ پانی کے اندر سے سینکڑوں چھوٹے چھوٹے کالے ہاتھ نکل کر جہاز کو نیچے کھینچنے لگے تھے۔ سیف نے اپنی تلوار نکالی اور اللہ کا نام لے کر ان جادوئی ہاتھوں پر وار کیا، لیکن جیسے ہی ایک ہاتھ کٹتا اس کی جگہ 2 اور نکل آتے۔ تبھی سیف کو یاد آیا کہ اس کے پاس وہ جادوئی انگوٹھی ہے جو اسے صحرا کے بزرگ نے دی تھی۔ سیف نے جیسے ہی اپنی انگلی میں پہنی ہوئی جادوئی انگوٹھی کو سمندر کے کالے پانی کی طرف کیا، اس میں سے ایک تیز نیلی روشنی نکلی۔ وہ روشنی پانی کی سطح سے ٹکراتے ہی ایک دھماکے کے ساتھ پھیل گئی اور وہ کالے جادوئی ہاتھ جو جہاز کو ڈبونے کی کوشش کر رہے تھے راکھ بن کر سمندر میں بکھر گئے۔ سمندر کا رنگ دوبارہ نیلا ہو گیا اور جہاز کی لرزش تھم گئی۔ راہوں نے سکھ کا سانس لیا، لیکن سیف جانتا تھا کہ یہ ابھی شروعات ہے۔ ابھی وہ کچھ دور ہی بڑھے تھے کہ افق پر ایک عجیب و غریب جزیرہ نمودار ہوا جو نقشے میں کہیں موجود نہ تھا۔ اس جزیرے کے گرد گہرے بادلوں کا گھیرا تھا اور وہاں سے ایسی آوازیں آ رہی تھیں جیسے سینکڑوں لوگ ایک ساتھ رو رہے ہوں۔ سیف نے جہاز کو جزیرے کے قریب لنگر انداز کرنے کا حکم دیا۔ جب وہ اپنے چند بہادر سپاہیوں کے ساتھ ساحل پر اترا تو وہاں کی ریت چاندی کی طرح چمک رہی تھی، مگر وہاں ایک بھی درخت یا پودا نہیں تھا۔ جزیرے کے عین وسط میں ایک بہت بڑا شیشے کا مینار تھا جس کے گرد آگ کے الاؤ جل رہے تھے۔ اچانک ریت کے اندر سے دھواں اٹھا اور ایک قد آور جن نمودار ہوا جس کے سر پر 2 سینگ تھے اور آنکھوں سے چنگاریاں نکل رہی تھی۔ اس نے گرج کر کہا، اے آدم زاد، تیری جرأت کیسے ہوئی کہ تو ملکہ عجوزہ کے ممنوعہ جزیرے پر قدم رکھے؟ یہاں سے زندہ واپس جانے کا راستہ صرف میری موت کے پیچھے چھپا ہے۔
सैफ ने बगैर डरे अपनी ढाल संभाली और बुलंद आवाज में कहा, मैं यमन का सुल्तान सैफ हूँ। मैं यहाँ अपने लोगों को रिहा कराने आया हूँ। तू जादू का सहारा ले या ताकत का, आज ये जजीरा तेरे नापाक खून से पाक हो जाएगा। नियात ने एक जोरदार कहका लगाया और अपनी आग उगलती हुई गजर सैफ की तरफ उछाली। सैफ ने फुर्ती से रास्ता बदला, लेकिन वो गजर जहाँ रेत पर गिरी वहाँ एक गहरा गड्ढा बन गया और इसमें से पिघलता हुआ लावा उबलने लगा। अब सैफ एक तरफ आग के लावे में, दूसरी तरफ देवकामत जिन के दरमियान फंस चुका था। सैफ ने देखा कि लावा तेजी से इसके कदमों की तरफ बढ़ रहा है और जिन दोबारा वार करने के लिए अपनी वजनी गजर उठा रहा है। सैफ ने भागने की बजाय एक बहादुराना फैसला किया। वो बिजली की तेजी से जिन की टांगों के दरमियान से होता हुआ इसकी पुश्त पर जा पहुंचा। जिन अपनी भारी भरकम जसामत की वजह से फौरन मुड़ ना सका और यही सैफ के लिए बेहतरीन मौका था। सैफ ने अल्लाह का नाम लेकर अपनी तलवार जिन की कमर में पैवस्त कर दी, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर तलवार जिन के जिस्म के आर पार निकल गई, जैसे वो गोश्त पोस्त का नहीं बल्कि धुएं का बना हो। जिन हंसा और बोला, नादान, मुझे लोहे की तलवार से नहीं मारा जा सकता। ये कहकर इसने सैफ को एक जोरदार ठोकर मारी, जिससे सैफ दूर रेत पर जा गिरा। हुए सैफ की नजर अपनी जादुई अंगूठी पर पड़ी, जो अब सुर्ख होकर दहक रही थी। इसे समझ आ गई कि ये जिन जादुई धुएं से बना है और इसे सिर्फ अंगूठी की ताकत ही खत्म कर सकती है। ऐसे ही जिन दोबारा सैफ पर झपटा। सैफ ने अंगूठी वाला हाथ सीधा इसके सीने की तरफ कर दिया और जोर से पुकारा, आग की रोशनी इस बादल के साए को मिटा दे। अंगूठी से एक ऐसी चिंगारी निकली जो सीधी जिन के दिल के मुकाम पर लगी। जिन के हलक से एक ऐसी खौफनाक चीख निकली कि पूरा जजीरा लर्ज उठा और देखते ही देखते वो देवकामत जिन धुएं के मरगुले में तब्दील होकर हवा में तहलील हो गया। जिनके मरते ही लावा जम गया और शीशे के मीनार का बड़ा दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। सैफ दौड़ता हुआ मीनार के अंदर दाखिल हुआ, जहां का मंजर देखकर इसके होश उड़ गए। वहां यमनी सौदागरों को जंजीरों में नहीं बल्कि शीशे के बड़े बड़े मर्तबानों में कैद किया गया था, जहां वो सांस लेने के लिए तड़प रहे थे। मीनार के ऊपर से एक साया नमूदार हुआ, जो एक नकाब पोश जादूगर था। इसने हाथ लहराया तो शीशे के मर्तबान तपने लगे और सौदागरों की चीखें बुलंद होने लगी। इसने कहा, सुल्तान, अगर तूने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं इन सबको पिघला दूंगा। कापोस जादूगर के अल्फाज सुनकर सैफ के कदम वहीं रुक गए। वो देख रहा था कि तपश की वजह से शीशे के मर्तबान सुर्ख हो रहे हैं और इसके अंदर कैद सौदागर बेहोश हो रहे हैं। जादूगर ने एक शैतानी कहका लगाया और कहा, सैफ, तूने मेरे भाई जिनको मार कर गलती की है। अब इसकी सजा ये है कि बेगुनाह सौदागर फंस गए। सैफ ने अपनी तलवार नियाम से निकाली और बड़ी संजीदगी से कहा, मुझसे मुकाबला कर, कुत्तों को छोड़ दे। जादूगर को जेब नहीं देता कि वो छुप कर वार करे। जादूगर इस बात पर तैश में आ गया और मीनार की बुलंदी से नीचे छलांग लगा दी। ऐसे ही इसका कदम जमीन से टकराए। शीशे के फर्श से हजारों नुकीले टुकड़े निकलकर सैफ की तरफ तीरों की तरह बढ़े। सैफ ने अपनी ढाल से इन टुकड़ों को रोका, मगर इन टुकड़ों में जादू था। वो ढाल से टकराकर टूटने की बजाय वापस हवा में मुड़ते और दोबारा हमला करते। सैफ समझ गया कि जब तक ये जादूगर जिंदा है, ये शीशे इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। उसने अपनी अंगूठी की ताकत का इस्तेमाल करना चाहा, मगर जादूगर ने फौरन एक काला मंत्र पढ़ा, जिससे पूरे मीनार में घटाटोप अंधेरा छा गया। इतना अंधेरा कि सैफ को अपना हाथ भी नजर नहीं आ रहा था। अंधेरे में जादूगर की आवाज चारों तरफ से गूंजने लगी, यहाँ तेरी अंगूठी की रोशनी काम नहीं करेगी, क्योंकि ये मेरी काली दुनिया है। अचानक सैफ को अपने दाएं कंधे पर एक गहरा जख्म महसूस हुआ। जादूगर ने अंधेरे का फायदा उठाकर शीशे के खंजर से वार किया था। सैफ ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी समात पर भरोसा किया। उसने महसूस किया कि जादूगर के कदमों की चाप बाएं जानिब से आ रही है। ऐसे ही जादूगर ने दूसरा वार करना चाहा। सैफ ने अंगूठी को रगड़ा नहीं, बल्कि इसे मुट्ठी में दबाकर पूरी कुव्वत से फर्श पर मारा। एक जोरदार धमाका हुआ और फर्श पर लगी शीशे की तह टूट गई। फर्श के टूटते ही नीचे से समंदर का पानी ऊपर आने लगा। जादूगर बौखला गया, क्योंकि इसका जादू सिर्फ खुशक शीशे पर काम करता था। पानी के छींटे पड़ते ही अंधेरा छटने लगा।
सैफ ने देखा कि जादूगर दीवार से लगकर दोबारा मंत्र पढ़ने की कोशिश कर रहा है। सैफ ने बिजली की तेजी से अपनी तलवार फेंकी, जो सीधी जादूगर के गले को चीरती हुई दीवार में पेवस्त हो गई। जादूगर के मरते ही तमाम शीशे के मर्तबान एक झटके से टूट गए और सौदागर बाहिफाजत बाहर निकल आए। मगर अभी वो खुशी मनाते कि मीनार जोर जोर से हिलने लगा। अजूजा जादूगरनी ने मीनार को तबाह करने का जादू शुरू कर दिया था, ताकि सैफ अपने साथियों समेत मलबे तले दब जाए। मीनार की दीवार में गहरे शगाफ पड़ रहे थे और छत से शीशे के बारीक टुकड़े किसी मौत की बारिश की तरह गिर रहे थे। सुल्तान सैफ ने बुलंद आवाज में सौदागरों को पुकारा, भागो साहिल की तरफ भागो, इससे पहले कि ये मीनार हमारा मकबरा बन जाए। खौफजदा सौदागर जान बचाने के लिए बाहर की तरफ दौड़े, लेकिन मीनार का मरकजी दरवाजा जादुई कुव्वत से बंद हो चुका था। जुजा की हंसी फिजा में गूंज रही थी, जैसे वो इस बर्बादी का जश्न मना रही हो। सैफ ने अपनी पूरी कुव्वत से दरवाजे पर कंधा मारा, मगर वो टस से मस ना हुआ। इसी दौरान छत का एक बड़ा हिस्सा ऐन सैफ के सर के ऊपर से गिरा, लेकिन इससे पहले कि वो सैफ को कुचल देता, एक गैबी हाथ ने सैफ को पीछे खींच लिया। सैफ ने पलट कर देखा, वहाँ एक नकाबपोश सवार खड़ा था, जिसके हाथ में चांदी का नेज़ा था। इस सवार ने नेज़ा जमीन पर मारा तो एक जोरदार इर्ताश पैदा हुआ, जिसने बंद दरवाजे के परखच्चे उड़ा दिए। बाहर निकलो सुल्तान, वक्त बहुत कम है। नकाबपोश की आवाज में एक अजीब सी घंटी थी जो जानी पहचानी मालूम होती थी। सैफ और तमाम सौदागर तेजी से मीनार से बाहर निकले और जैसे ही इनके कदम रेत पर पड़े, वो अजीमुल शान शीशे का मीनार एक खौफनाक धमाके के साथ जमीन बोस हो गया, जिससे उठने वाली धूल ने पूरे जजीरे को ढांप लिया। सैफ ने मुड़कर इस नकाबपोश का शुक्रिया अदा करना चाहा, मगर वहाँ कोई ना था। वो सवार हवा में तहलील हो चुका था, सिर्फ रेत पर इसके घोड़े के खुरों के निशान बाकी थे। दागरों ने सैफ के कदमों में गिरकर इसका शुक्रिया अदा किया, मगर सैफ की नज़रें समुंदर की लहरों पर जमी थी। वहाँ से एक काली धुंध उठ रही थी, जो तेजी से इनके जहाज़ों की तरफ बढ़ रही थी। सैफ समझ गया कि अजूजा ने अभी हार नहीं मानी। वो इन सौदागरों को छीनने के लिए अब खुद मैदान में उतरने वाली थी। तभी समंदर के ऐन दरमियान में एक द्योकामत औरत का चेहरा उभरा, जिसकी आंखें आग के अलाव की तरह दहक रही थी। ये जादूगरनी अजूजा थी। उसने गर्ज कर कहा, सैफ, तूने मेरे जादूगरों को मारा, मेरे जजीरे को तबाह किया। अब मैं तेरे जहाज को समुंदर की तह में दफन कर दूंगी। लहरें पहाड़ों जितनी बुलंद होने लगी और सैफ का जहाज किसी तिनके की तरह डोलने लगा। समंदर की लहरें आसमान से बातें करने लगी और तंदो तेज हवाओं ने जहाज के बादबानों को चीर कर रख दिया। जादूगरनी अजूजा का खौफनाक चेहरा बादलों और लहरों के दरमियान छुपा हुआ था, और इसकी शैतानी हंसी बिजली की कड़क से ज्यादा होलनाक थी। सौदागर और मुल्ला खौफ के मारे जहाज के तख्तों से चिमट गए, क्योंकि जहाज अब किसी भी लम्हे पाश पाश होने वाला था। जुजा ने अपना हाथ लहराया तो समंदर के पानी से सैकड़ों बर्फीले तीर निकल कर जहाज की तरफ लपके। सैफ ने अपनी ढाल संभाली और मुल्लाहों को पुकारा, हौसला मत हारो, अल्लाह की मदद हमारे साथ है। सैफ ने अपनी जादुई अंगूठी को रगड़ा, जिससे एक वास्ती नूरानी हाला जहाज के गिर्द फैल गया। से टकरा कर वो बर्फीले तीर पानी बनकर गिरने लगे। जुजा ये देखकर मजीद गजबनाक हुई। इसने एक काला मंत्र पढ़ा और समंदर के पानी से एक बहुत बड़ा आबी दहा बरामद हुआ। उसने अपने जबड़े खोलकर जहाज को निगलने की कोशिश की। जहाज इस अजदहे के गर्दाब में पंस कर तेजी से घूमने लगा। सैफ ने महसूस किया कि अंगूठी की रोशनी मदम पड़ रही है, क्योंकि अजूजा का ये जादू बहुत कदीम और ताकतवर था। लेकिन इस वक्त जब अजदहा जहाज में हमला आवर होने वाला था, समंदर की तह से एक सफ़ेद रोशनी नमूदार हुई। वो वही नकाबपोश सवार था जो मीनार में गायब हो गया था। अब समंदर की लहरों में घोड़ा दौड़ता हुआ सैफ के करीब आ गया। इसने सैफ की तरफ एक छोटा सा सब्ज रंग का पत्थर उछाला और कहा, सुल्तान, इस पत्थर को अंगूठी के नगीने पर रखो, यह जुजा के शहर की काट है। सैफ ने फौरन वैसा ही किया। जैसे ही
सब्ज पत्थर अंगूठी से टकराया। एक ऐसी चिंगारी निकली जिसने आबी असदहे के परखचे उड़ा दिए। जादूगर ने अजूजा के मुंह से एक चीख निकली और इसका अक्स बादलों में गायब होने लगा। मगर जाते जाते इसने एक आखिरी वार किया। इसने समंदर में एक ऐसा मुहीब गर्दाब पैदा किया जिसने सैफ के जहाज़ों को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। नकाबपोश सवार ने अपना नेज़ा लहराया और सैफ को पुकारा, सुल्तान, समुंदर अब आपको रास्ता देगा, पीछे मुड़कर मत देखना। एक जोरदार धमाका हुआ और समुंदर दो हिस्सों में तकसीम हो गया। इसके बीचों बीच से एक रास्ता निकल आया। सैफ का जहाज इस जादुई रास्ते पर तेजी से तैरने लगा, मगर वो नकाबपोश सवार इस गर्दाब की नजर हो गया। सैफ ने पीछे मुड़कर देखा तो गर्दाब बंद हो रहा था। वो पुरसरार निजात दहिंदा गायब हो चुका था। अब सैफ के सामने यमन का साहिल नजर आ रहा था, लेकिन क्या ये वही यमन था जिसे वो छोड़कर गया था? क्योंकि साहिल पर धुएं के बादल उठे हुए थे। जैसे ही सैफ का जहाज यमन के साहिल से टकराया, सुल्तान के पैरों तले से जमीन निकल गई। जिस बंदरगाह को वो हंसता हंसता छोड़कर गया था, वहाँ अब लाशों के ढेर और जले हुए मकानात थे। फिजा में इंसानी गोश्त के जलने की बू फैली हुई थी और दूर शहर की तरफ से चीखों पुकार सुनाई दे रही थी। सैफ ने एक जख्मी सिपाही को सहारा देकर पूछा, ये सब क्या है? मेरे पीछे यमन पर किसने हमला किया? सिपाही ने कांपती हुई आवाज़ में जवाब दिया, सुल्तान, जादूगरनी अजूजा ने हबशियों के इन सिपाहियों को दोबारा जिंदा कर दिया है जो जंग में मारे गए थे। ये मुर्दा फौज ना थकती है और ना मरती है। उन्होंने शाही महल का घेराव कर लिया है। सैफ ने गुस्से से अपनी तलवार निकाली और घोड़े पर सवार होकर महल की तरफ दौड़ा। इसके पीछे यमनी मुल्ला और सुदागर भी लाठियां और तलवारें लेकर निकल पड़े। जब सैफ शहर के मरकजी बाजार पहुंचा तो इसने देखा कि हबशी सिपाही, जिनके जिस्मों से हड्डियां निकल रही थीं और आंखें बेनूर थीं, आम शहरियों पर टूट पड़े थे। इन पर तलवारों का वार असर नहीं कर रहा था। अगर किसी का बाजू कट जाता तो वो दोबारा जुड़ जाता। सैफ ने अंगूठी की रोशनी इन पर डाली, लेकिन इसे ये देखकर दचका लगा कि अंगूठी की रोशनी सिर्फ जादुई मखलूक को मारती थी। इन मुर्दों पर इसका असर बहुत कम हो रहा था, क्योंकि अजूजा ने इन्हें ज़मीन की काली मिट्टी से दोबारा जोड़ा था। अचानक महल के मीनार से एक ज़ोरदार धमाका हुआ और मलका नुसरत की चीख सुनाई दी। सैफ ने देखा कि अजूजा का एक ख़ास चेला, जो आधा इंसान और आधा भेड़िया था, मलका को घसीटता हुआ मीनार की छत पर ले आया है। इसने सुल्तान सैफ को देखकर एक लंबा खंजर मलका की गर्दन पर रख दिया और बुलंद आवाज में कहा, सुल्तान, अपनी अंगूठी समंदर में फेंक दो, वरना तुम्हारी माँ का खून तुम्हारे सामने बह जाएगा। सैफ एक तरफ अपनी तड़पती हुई आवाम और दूसरी तरफ अपनी माँ की जिंदगी के दरमियान फंस गया था। मुर्दा फौज ने सैफ को चारों तरफ से घेर लिया था और इनके नीले नाखून सैफ के जिस्म को चीरने के लिए तैयार थे। सैफ का हाथ लड़ने लगा। एक तरफ यमन की वो अवाम थी जिन्होंने इसे अपना निजात दहिंदा माना था, और दूसरी तरफ वो माँ जिसकी दुआओं ने इसे हर तूफान से निकाला था। प्रिया सफात जादूगर का कहका फिजा में गूंजा, देर मत करो सुल्तान, या अंगूठी फेंको या अपनी माँ की मौत देखो। मलका नुसरत ने लहूलुहान हालत में बुलंद आवाज से पुकारा, नहीं सैफ, ये अंगूठी अमन की अमानत है, इसे मत फेंकना, मेरी जिंदगी मेरे वतन से बड़ी नहीं। ये सुनकर जादूगर ने गुस्से में खंजर की गिरफ्त मजबूत कर ली। सैफ ने अपनी आंखें बंद की और एक लम्हे के लिए खामोश हो गया। सब ने समझा कि शायद सुल्तान ने हार मान ली है, लेकिन सैफ दरअसल अपने अंदर छुपी इन गैबी ताकतों को पुकार रहा था जो इसे शेख आदिल ने सिखाई थी। अचानक सैफ ने अपनी मुट्ठी खोली, मगर अंगूठी फेंकने की बजाय इसे फिजा में बुलंद कर दिया। अंगूठी से एक ऐसी लहर निकली जो रोशनी की तरह नहीं बल्कि आवाज की लहर की तरह थी। लहर के टकराते ही वो मुर्दा फौज जो सैफ को घेर चुकी थी एक लम्हे के लिए साकत हो गई। सैफ ने इस मौका का फायदा उठाया और अपनी तलवार एक खास जाविये से जादूगर की तरफ उछाली। तलवार जादूगर के सीने में लगने के बजाय मलका नुसरत के पास लगी जंजीर से टकराई और इसे काट दिया। यही लम्हे वो पुरसरार नकाबपोश सवार दोबारा नमूदार हुआ, मगर इस बार वो अकेला नहीं था। इसके साथ अकाबों का एक झुंड था जिन्होंने मीनार पर हमला करके जादूगर को उलझा दिया। सैफ ने एक लंबी छलांग लगाई और दीवार के सहारे मीनार की छत पर जा पहुंचा। इससे पहले कि भेड़िया जादूगर संभल पाता, सैफ ने इसे गर्दन से दबोच लिया। जादूगर घुराया
تم مجھے مار کر اپنی ماں کو نہیں بچا سکتے۔ عجوزہ نے محل کے نیچے آگ کا طلسم دبا رکھا ہے۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا، زمین سے گرم دھواں اٹھنے لگا اور محل کی بنیادیں پگھلنے لگیں۔ اب سیف کو اپنی ماں کو لے کر اس گرتے ہوئے اور جلتے ہوئے محل سے باہر نکلنا تھا، لیکن نیچے مردہ فوج دوبارہ متحرک ہو چکی تھی۔ محل کی بنیادوں سے اڑتی ہوئی آگ نے سنگ مرمر کے فرش کو سرخ کر دیا تھا اور ہر طرف سے چنگاریاں اڑ رہی تھیں۔ سلطان سیف نے اپنی زخمی ماں کو سہارا دیا، لیکن نیچے اترنے والے تمام راستے آگ کے شعلوں میں گر چکے تھے۔ بھیڑیا صفت جادوگر جسے سیف نے زخمی کیا تھا تڑپتے ہوئے ہنسا اور بولا، تم یہاں سے زندہ نہیں نکل سکتے۔ یہ آگ انسانی نہیں بلکہ شیطانی ہے جو صرف گوشت جلا کر ٹھنڈی ہوتی ہے۔ سیف نے غصے سے اسے ٹھوکر ماری اور محل کی بالکونی سے نیچے جھانکا۔ نیچے ہزاروں کی تعداد میں مردہ فوج کھڑی ہوئی تھی جو محل کے گرنے کا انتظار کر رہی تھی تاکہ وہ ملبے سے نکلنے والے ہر جاندار کو چیر پھاڑ دیں۔ اسی لمحے سیف کی نظر فرش پر بنے ایک قدیم نقش نگار پر پڑی جو ایک ڈال کی شکل کا تھا۔ اسے یاد آیا کہ اس کے باپ بادشاہ ذی یزن نے اسے بچپن میں ایک خفیہ راستے کے بارے میں بتایا تھا جو شاہی محل کے قید خانے سے نکل کر یمن کے قدیم مندر تک جاتا تھا۔ سیف نے اپنی انگوٹھی پوری قوت کے ساتھ اس نقش پر ماری۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور فرش کا وہ حصہ نیچے کی طرف کھل گیا جہاں ایک تاریک سیڑھیاں نظر آ رہی تھیں۔ سیف اپنی ماں کو لے کر ان سیڑھیوں میں اتر گیا۔ اس سے پہلے کہ جادوگر دوبارہ وار کر پاتا، محل کی چھت ایک زوردار دھماکے سے نیچے آ گری اور وہ جادوگر اپنی ہی لگائی ہوئی آگ میں بھسم ہو گیا۔ زیر زمین راستہ گٹا ٹوپ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا اور وہاں سے ایسی ہوا آ رہی تھی جیسے صدیوں سے وہاں کسی کا گزر نہ ہوا ہو۔ سیف اپنی ماں کا ہاتھ تھامے دیواروں کے سہارے آگے بڑھتا رہا۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ دیواریں حرکت کر رہی ہیں۔ جب اس نے انگوٹھی کی روشنی دیوار پر ڈالی تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ دیواریں پتھر کی نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں جادوئی بچھو تھے جو ایک دوسرے کے اوپر رینگ رہے تھے اور اب وہ سیف کی روشنی کی تپش محسوس کر کے ان کی طرف بڑھنے لگے تھے۔ سیف ایک بار پھر بڑی مشکل میں پھنس گیا تھا۔ پیچھے سے محل کا ملبہ راستہ بند کر چکا تھا اور سامنے زہریلے بچھو کا سمندر تھا۔ تبھی اندھیرے میں سے ایک بار پھر وہی پراسرار نقاب پوش سوار کی آواز آئی، سلطان اپنی تلوار زمین پر مارو، یہاں روشنی نہیں بلکہ ارتعاش تمہارا راستہ بنائے گا۔ سیف نے ویسا ہی کیا اور جیسے ہی تلوار زمین سے ٹکرائی وہ بچھو ایک خاص ترتیب میں ہٹنے لگے اور ایک راستہ بن گیا۔ لیکن جیسے ہی وہ آگے بڑھے ایک ایسا دروازہ آیا جس پر یمن کے 7 قدیم بادشاہوں کے سر بنے ہوئے تھے اور ہر سر سے ایک پہیلی نما آواز گونج رہی تھی۔ سیف اس عظیم الشان دروازے کے سامنے کھڑا تھا جہاں پتھر کے بنے 7 قدیم بادشاہوں کے سر نصب تھے اور ہر سر سے ایک پہیلی نما آواز گونج رہی تھی۔ سیف اس عظیم الشان دروازے کے سامنے کھڑا تھا جہاں پتھر کے بنے 7 بادشاہوں کے سر نصب تھے۔ جیسے ہی سیف نے قدم آگے بڑھایا پہلے سر کی پتھریلی آنکھیں روشن ہوئیں اور ایک گونجتی ہوئی آواز آئی، اے یمن کے وارث، اس دروازے سے وہ گزرے گا جس کے پاس طاقت نہیں بلکہ وہ خواب ہوگا جو وقت کی پکار ہے۔ وہ کیا ہے جو پیدا ہوتے ہی اڑنے لگتا ہے، جوان ہو کر زمین پر رینگتا ہے اور بوڑھا ہو کر پانی میں سما جاتا ہے۔ سیف سوچ میں پڑ گیا اور بچھو اب دوبارہ قریب آ رہے تھے۔ ملکہ نصرت نے سیف کا ہاتھ دبایا اور دھیرے سے کہا، بیٹے یہ انسانی زندگی نہیں، یہ دھواں ہے۔ سیف نے بلند آواز میں جواب دیا، وہ دھواں ہے۔ جواب ملتے ہی پہلا سر خاموش ہوا اور دروازے کا ایک تالا ٹوٹ گیا۔ دھواں آگ سے اٹھ کر اڑتا ہے، راکھ بن کر زمین پر گرتا ہے اور آخر کار بارش کے پانی میں مل کر ختم ہو جاتا ہے۔ اب دوسرے سر کی باری تھی۔ اس نے سوال کیا، وہ کون سی چیز ہے جسے جتنا زیادہ بانٹو گے وہ اتنی ہی بڑھے گی اور جسے چھپا کر رکھو گے وہ تمہیں ختم کر دے گی؟ سیف نے فوراً کہا، وہ علم اور سچائی ہے۔ دوسرا تالا بھی ٹوٹ گیا۔ اب تیسرے بادشاہ کے پتھر کے سر نے سوال کیا، وہ کیا ہے جو سب کو دیکھتا ہے لیکن خود کو نہیں دیکھ سکتا؟ سیف نے مسکرا کر جواب دیا، آنکھ۔ تیسرا تالا بھی ٹوٹ گیا۔ اب چوتھے سر نے سوال کیا، وہ کون سی بادشاہت ہے جس کا کوئی تخت نہیں اور وہ کون سا بادشاہ ہے جس کا کوئی تاج نہیں؟
सैफ ने अपनी माँ की तरफ देखा और बोला, खामोशी की बादशाहत और वक़्त का बादशाह। चौथा सर भी खामोश हो गया। पांचवें ने सवाल किया, वो क्या है जो आपके सामने है लेकिन आप इसे पकड़ नहीं सकते, और वो हमेशा आपके पीछे रहता है मगर आप इसे छोड़ नहीं सकते। सैफ ने जवाब दिया, मेरा मुस्तकबिल और मेरा माजी। साया। पांचवा ताला भी खुल गया। अब छठे सर की बारी थी। वो कौन सा घर है जिसका कोई दरवाज़ा नहीं और इसमें रहने वाला कैदी खुद इस घर को तोड़कर बाहर निकलता है। सैफ ने दानाई से कहा, अंडा और परिंदा। छठा सर भी अपनी आंखें बंद कर गया। बारी थी सातवीं और आखिरी बादशाह के सर की। इसकी आवाज़ गुस्से और हैबत से भरी हुई थी। ऐ सैफ, तूने अक्ल के ताले तो खोल लिए, अब बता वो कौन सा कर्ज है जो इंसान उतारने की कोशिश करे तो मजीद बढ़ता जाता है। सैफ ने मलका नुसरत के कदमों की मट्टी उठाई और इसे चूम कर कहा, माँ की ममता का कर्ज। जवाब मिलते ही वो पथरीला दरवाज़ा एक जोरदार धमाके से खुल गया और अंदर से एक ऐसी खुशबू आई जैसे हजारों साल पुराने संदल की लकड़ी जल रही हो। सैफ और मलका नुसरत जैसे ही अंदर दाखिल हुए, जहां यमन के कदीम बादशाह के मुजस्मे अपने हाथों में मिशलें थामे खड़े थे। हाल के बीचों बीच एक तिलिस्माई आईना रखा था जिसमें यमन का नक्शा किसी जिंदा मंजर की तरह चल रहा था। सैफ ने आईने में देखा कि जादूगरनी अजूजा यमन के मरकजी चौराहे में एक होलनाक जादू कर रही है जिससे लोगों के जिस्म पत्थर के हो रहे थे। इसी वक्त हाल के एक तारीख गोशे से वही पुरसरार नकाब गोश सवार नमूदार हुआ। इस बार इसने अपनी तलवार न्याम में डाली और आहिस्ता से अपना नकाब उलट दिया। सैफ की आंखें हैरत से फैल गई। वो कोई अजनबी नहीं बल्कि सैफ का बचपन का दोस्त और वफादार सिपाही अंतर था जिसे सब ने पहले मार्के में मरा हुआ समझ लिया था। अंतर ने झुककर सलाम किया और कहा, सुल्तान, आपको यहाँ देखकर मेरी रूह को सुकून मिला। मैं मरा नहीं था बल्कि इन बादशाहों की रूहों ने मुझे आपकी हिफाजत के लिए यहाँ कैद कर रखा था। अब वक्त आ गया है कि हम यमन को इस काली जादूगरनी से आज़ाद करवाएं। अभी वो बात मुकम्मल ही कर पाए थे कि आईने से एक काली शमा निकली और पूरे हाल में ज़लज़ले की कैफियत पैदा हो गई। अजूजा को इनकी मौजूदगी का पता चल चुका था। तिलिस्माती आईने से निकलने वाली काली शुआओं ने हाल के स्तूनों को लरजा कर रख दिया। अंतर ने तेजी से डाल आगे करके सैफ और मलका नुसरत को इस जादुई वार से बचाया। ये आईना सिर्फ एक मंजर नहीं रहा, यह अजूजा की आंख बन चुका है। अंतर ने गर्ज कर कहा। सैफ ने अपनी तलवार संभाली और अंतर से पूछा, यहाँ कैसे पहुँचे और कदीम बादशाहों का हाल हमें अजूजा तक कैसे पहुँचाएगा। अंतर ने हाल के फर्श पर बने एक खास निशान की तरफ इशारा करते हुए बताया कि ये जगह यमन का रूहानी दिल है। सुल्तान, जब आप राह में थे मैं अजूजा के कैद खाने से भागकर यहाँ पनाह लेने में कामयाब हो गया था। इन कदीम बादशाहों के मुजस्मे दरअसल यमन के मुहाफिज हैं। उन्होंने मुझे बताया कि अजूजा का जादू तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक इसकी काली हांडी को यमन के कदीम शाही खून से बुझाया न जाए। सैफ ने आईने में देखा जहां अजूजा अब एक खतरनाक मंत्र पढ़ रही थी। इससे यमन के मासूम बच्चे पत्थर के मुजस्मों में तब्दील हो रहे थे। सैफ का खून खोल उठा। उसने अंतर से कहा, हमें यहाँ से फौरन निकलना होगा। कोई रास्ता है जो हमें सीधा शहर के चौराहे तक ले जाए। अंतर ने एक वजनी मिशल उठाई और इसे एक दीवार में लगे खास खाने में पेवस्त कर दिया। अचानक हाल के एक तरफ का फर्श नीचे की तरफ सिरकने लगा और एक खुफिया सुरंग नमूदार हुई। रास्ता हमें शहर की कदीम मस्जिद के तय खाने में ले जाएगा तो अजूजा जादूगरनी की क़यामगाह से चंद कदम के फासले पर है। लेकिन सुल्तान, याद रहे, अजूजा के गिर्द मुर्दा फौज का पहरा है और वो आपकी खुशबू पहचान सकती है। मलका नुसरत ने सैफ के सर पर हाथ रखा और दुआ दी, बेटे, हक की ताकत बातिल के सहर से बड़ी होती है। जाओ और यमन के मुस्तकबिल को बचा लो। सैफ और अंतर इस तारीख सुरंग में उतर गए। अभी वो आधे रास्ते में पहुंचे थे। इस सुरंग की छत से काली लेसदार धूबत टपकने लगी। सैफ ने ऊपर देखा तो इसके होश उड़ गए। छत पर हजारों की तादाद में इंसानी सरों वाली चमगादड़ें लटकी हुई थी जिनकी आंखें सुर्ख अंगारों की तरह चमक रही थी। ये अजूजा की जासूस मखलूक थी।
जो खामोशी से इनका रास्ता रोकने के लिए खड़ी थी। अंतर ने अपनी तलवार निकाली, लेकिन सैफ ने इसे रोक दिया। नहीं अंतर, यहाँ तलवार नहीं, जादुई अंगूठी का वो हिस्सा काम आएगा जो हमने जजीरा तिलिस्म से हासिल किया था। सैफ ने जैसे ही अंगूठी को हवा में लहराया, एक शदीद सफेद रोशनी निकली जिसने इन चमगादड़ों को अंधा कर दिया। वो चीखती हुई इधर उधर गिरने लगी, लेकिन इन चीखों ने शहर के चौराहे पर बैठी अजूजा को खबरदार कर दिया। यमन का सुल्तान इसकी मौत बनकर करीब आ रहा है। बादलों की चीखें अभी फिजा में गूंज ही रही थी कि सैफ और अंतर तेजी से सुरंग के आखिरी सिरे तक पहुंच गए। यहाँ एक जंग आलूद लोहे का दरवाजा ऊपर की तरफ खुलता था। ऐसे ही उन्होंने वो दरवाजा धकेला, वो शहर की कदीम तरीन जामिया मस्जिद के एक तारीक और गर्द आलूद तय खाने में निकल आए। बाहर से अजूजा के मंत्र पढ़ने की भयानक आवाजें आ रही थी। मंत्र ने दीवार के एक सुराख से बाहर झांका और हामते हुए कहा, खान जादूगरनी ने मस्जिद के सहन को अपनी शैतानी रसूमात का मरकज बना लिया है। इसने सहन के चारों कोनों पर आग के अलाव रोशन कर रखे हैं। इनके दरमियान वो काली हांडी उबर रही है जिससे निकलने वाला धुआं पूरे शहर को अपनी लपेट में ले रहा है। सैफ ने बाहर निकलना चाहा, लेकिन अंतर ने इसका बाजू थाम लिया। सुल्तान, मस्जिद के सदर दरवाजे पर अजूजा ने एक शैतानी आमजाद खड़ा किया हुआ है, बिल्कुल आपकी शक्ल का है और इसके पास भी वैसी ही तलवार है जैसी आपके पास है। वो आपका रास्ता रोकेगा ताकि अजूजा अपना आखिरी मंत्र मुकम्मल कर सके। सैफ ने गुस्से से कहा, जो सच है वो झूठ से नहीं डरता। अगर वो मेरा हमजाद है तो उसे ये भी मालूम होगा कि सैफ बिन जी यजन अपनी कौम के लिए जान देना जानता है। सैफ जैसे ही तह खाने से निकलकर सहन में आया, तमाम मुर्दा फौज इसकी तरफ लपकी, लेकिन अजूजा ने एक इशारे से इन्हें रोक दिया। धुएं के एक बादल से बिल्कुल सैफ जैसा दिखाई देने वाला एक शख्स बरामद हुआ। इसकी आंखें काली थीं और चेहरे पर एक मकाराना मुस्कुराहट थी। साद ने सैफ की तरफ तलवार निकाली और गर्ज कर कहा, ऐ सैफ, तू अपने ही साए से कैसे लड़ेगा? जो वार तू मुझ पर करेगा वही दर्द तुझे महसूस होगा। तूने मुझे मारा तो तू खुद भी मर जाएगा। अजूजा जादूगरनी ने हांडी के पास बैठकर कहका लगाया, देख लो सैफ, आज तेरी जुर्रत ही तेरी मौत बन गई है। सैफ ने अपनी तलवार न्याम में डाल ली और अंगूठी वाली मुट्ठी बंद कर ली। जाद हैरान रह गया और अपनी तलवार लेकर सैफ की तरफ बढ़ा। अंतर चीखा, सुल्तान, तलवार निकाल लो, वार करने वाला है। लेकिन सैफ खामोश खड़ा रहा। जैसे ही हमजाद ने सैफ के सीने पर तलवार मारी, सैफ ने पीछे हटने की बजाय हमजाद को गले लगा लिया और अपनी अंगूठी इसके दिल के मुकाम पर रखकर इसे पूरी कुव्वत से रोशन कर दिया। एक जोरदार सफेद धमाका हुआ। हमजाद की काली ताकत सैफ की अंगूठी की पकीज़ा रोशनी को बर्दाश्त न कर सकी और वो चीखता हुआ धुएं में तब्दील हो गया। सैफ को कोई जख्म नहीं आया क्योंकि इसने हमजाद को नफरत से नहीं बल्कि के जादू को खत्म करने की नीयत से छुआ था। हमजाद के खत्म होते ही अजूजा की हांडी से काला खून उबल कर बाहर गिरने लगा। जादूगरनी गुस्से से खड़ी हो गई और इसने आसमान की तरफ हाथ उठाए तो बादलों से काली आग के गोले बरसने लगे। शहजादा सैफ और जादूगरनी अजूजा के दरमियान कोई रुकावट नहीं थी, सिवाय इस दहकती हुई काली हांडी के। हमजाद के धुएं में तहलील होते ही मस्जिद का सहन एक मैदान जंग बन गया। काली हांडी से उबलने वाला मादा जमीन पर गिरकर सांपों की तरह रेंगने लगा। जादूगरनी अजूजा ने देखा कि इसका बेहतरीन मोहरा शिकस्त खा गया है तो इसने अपने बाल खोल दिए और आसमान की तरफ मुंह करके एक ऐसा चीख नुमा मंत्र पड़ा कि फिजा का रंग खून की तरह सुर्ख हो गया। सैफ अपनी तलवार लहराता हुआ हांडी की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही वो करीब पहुंचा, हांडी से निकलने वाले काले धुएं ने एक दीवार की शक्ल इख्तियार कर ली। अजूजा ने गर्ज कर कहा, शांत सैफ, इस हांडी में यमन के मासूमों की रूहें कैद हैं। अगर तूने इसे तोड़ने की कोशिश की तो यमन का हर बासी हमेशा के लिए मौत की नींद सो जाएगा। उसके कदम रुक गए। वो देख रहा था कि हांडी के अंदर से वही चीखें उबर रही थी तो इसने जजीरा तिलिस्म के मीनार में सुनी थी। अंतर जो मुर्दा फौज से लड़ता हुआ सैफ के करीब पहुंचा था, चिल्लाया, सुल्तान, ये झूठ बोल रही है। ये रूहें नहीं बल्कि इसके जादू का फरेब है। अंगूठी की ताकत इस्तेमाल करें। सैफ ने अपनी अंगूठी को हांडी के दहाने की तरफ किया,
لیکن عجوزہ نے فوراً اپنی جادو چھڑی سے ایک کالی لہر چھوڑی۔ دونوں طاقتوں کے درمیان ایک ٹکراؤ ہوا اور ایک ایسا دھماکہ ہوا کہ مسجد کے در و دیوار لرز گئے۔ سیف کو محسوس ہوا کہ انگوٹھی کی طاقت آج پہلی بار کسی بڑی رکاوٹ کا سامنا کر رہی ہے، کیونکہ عجوزہ جادوگرنی نے اس بار اپنی زندگی کی تمام شیطانی طاقت اس ہانڈی میں جھونک دی تھی۔ اسی دوران مردہ فوج کے چند سپاہی سیف پر پیچھے سے حملہ کرنے والے تھے۔ انتر نے دیکھ لیا اور وہ ڈال بن کر سیف کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ زہریلا خنجر انتر کے کندھے میں پیوست ہو گیا، لیکن اس بہادر سپاہی نے ہار نہ مانی۔ اس نے اپنا چاندی کا نیزہ پوری قوت سے عجوزہ کی طرف اچھالا۔ نیزہ جادوگرنی کے کندھے کو چھوتا ہوا گزرا، جس سے اس کا ارتکاز ٹوٹ گیا۔ جیسے ہی عجوزہ کا جادوئی حصار کمزور ہوا، سیف نے انگوٹھی کی روشنی کو ایک نکیلے تیر کی شکل دی اور اسے سیدھا ہانڈی کے وسط میں پیوست کر دیا۔ ہانڈی میں ایک زلزلہ سا آیا اور اس میں سے کالا دھواں نکلنے کی بجائے سنہری روشنی پھوٹنے لگی۔ عجوزہ تڑپ کر زمین پر گر گئی، جیسے اس کی روح کھینچی جا رہی ہو، لیکن ابھی فتح دور تھی۔ ہانڈی ٹوٹنے کی بجائے تپنے لگی اور اس کا درجہ حرارت اتنا بڑھ گیا کہ قریب پڑے پتھر پگھلنے لگے۔ سیف سمجھ گیا کہ اگر یہ ہانڈی دھماکے سے پھٹی تو پورا شہر راکھ کا ڈھیر بن جائے گا۔ وہ شاہی خون یاد آیا جس کا ذکر انتر نے حال میں کیا تھا۔ سیف نے اپنی تلوار سے اپنی ہتھیلی پر گہرا زخم لگایا اور اپنا خون اس ابلتی ہوئی ہانڈی میں ڈالنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ ایسے ہی سیف کے شاہی خون کے قطرے اس دہکتی ہوئی کالی ہانڈی میں گرے۔ ایک ایسا ہولناک دھماکہ ہوا جس نے پورے شہر یمن کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ کالا جادوئی مادہ جو لاوے کی طرح ابل رہا تھا، شاہی خون کے مز سے ٹھنڈا ہو کر سفید راکھ میں تبدیل ہونے لگا۔ پورے شہر پر بہہ ہوا کالا دھواں چھٹنے لگا اور وہ معصوم لوگ جو پتھر کے بن چکے تھے دوبارہ زندگی کی طرف لوٹنے لگے۔ عجوزہ جادوگرنی اپنی جادوئی طاقت کو راکھ بنتا دیکھ کر عجوزہ کے منہ سے ایک ایسی دل خراش چیخ نکلی جو انسانی نہیں تھی۔ اس کا چہرہ تیزی سے بوڑھا اور بھیانک ہونے لگا، کیونکہ اس کی جوانی اس کالی ہانڈی کے طلسم سے جڑی تھی۔ اس نے لڑکھڑاتے ہوئے سیف کی طرف دیکھا اور برائی سیف، تو نے میری برسوں کی محنت برباد کر دی، لیکن یاد رکھ میں ختم نہیں ہوئی۔ میرا انتقام تیرے لیے وہ جہنم لائے گا جس کا تو نے خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ سیف اپنی تلوار سے اس کا سر قلم کرتا، عجوزہ نے زمین پر اپنا بچا کچا کالا خون تھوکا اور ایک دھوئیں کے مرغوبے میں تبدیل ہو کر ہوا میں اڑ گئی۔ اس کے پیچھے مردہ فوج کی ہڈیاں بھی ریت کی طرح بکھر گئیں۔ یمن کا صحن جو اب تک شیطانیت کا گڑھ بنا ہوا تھا، اب اللہ کے ذکر اور امن کی روشنی سے منور ہو رہا تھا۔ سیف دوڑ کر انتر کے پاس پہنچا جو زخموں سے چور زمین پر گرا تھا۔ انتر نے کمزور آواز میں کہا، سلطان، یمن آزاد ہو گیا، میری جان کی کوئی قیمت نہیں اگر آپ کا تخت سلامت رہے۔ سیف نے انگوٹھی کی شفا بخش روشنی انتر کے زخموں پر ڈالی، جس سے اس کا خون بہنا رک گیا۔ سیف نے اسے سہارا دے کر کھڑا کیا اور بلند آواز میں کہا، انتر، تم صرف سپاہی نہیں، تم یمن کے ہیرو ہو۔ شہر کے لوگ جو اب ہوش میں آ چکے تھے دیوانہ وار مسجد کے صحن کی طرف دوڑے۔ انہوں نے اپنے سلطان کو خون آلود حالت میں دیکھا، لیکن اس کے چہرے پر فتح کی چمک تھی۔ ملکہ نصرت بھی خفیہ راستے سے ہوتی ہوئی وہاں پہنچ گئی اور اپنے بیٹے کو گلے لگا لیا، لیکن جہاں ہر طرف خوشی کے نعرے لگ رہے تھے، وہیں سیف کی نظریں دور سمندر کی طرف اٹھیں، جہاں افق پر اب بھی ایک کالی لکیر باقی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ عجوزہ ابھی مری نہیں، بلکہ اپنے آخری اور سب سے بڑے گڑھ کی طرف بھاگ گئی ہے، جہاں اس کا آقا اور کالی جادو کی دنیا کا بادشاہ اس کا انتظار کر رہا ہے۔ ان کی گلیوں میں جشن کا سا سما تھا، لیکن سلطان سیف بن ذی یزن کے دل میں ابھی بھی ایک کھٹک باقی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ جادوگرنی عجوزہ بھلے ہی کمزور ہو گئی ہو، لیکن جب تک وہ زندہ ہے یمن پر خطرے کے بادل منڈلاتے رہیں گے۔ سیف نے انتر اور اپنے خاص دستے کو ساتھ لیا اور اس کالی دھند کا پیچھا کیا جو ساحل کی طرف جا رہی تھی۔ جب وہ ساحل پر پہنچے تو دیکھا کہ عجوزہ ایک ٹوٹی ہوئی کشتی پر بیٹھی سمندر کی لہروں کو حکم دے رہی تھی۔ اس کا جسم اب بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا اور اس کی آواز کسی زخمی جانور کی طرح لگ رہی تھی۔ سیف نے گرج کر کہا، عجوزہ، بھاگنے کا راستہ ختم ہو چکا ہے۔
तूने यमन की ज़मीन को लहू रंग किया, अब तेरा लहू इस समंदर की नज़र होगा। मूसा ने आखिरी बार एक खौफनाक मंत्र पढ़ा जिससे समंदर का पानी उबलने लगा और एक बहुत बड़ी लहर दीवार की तरह सैफ की तरफ बढ़ी। लेकिन सैफ इस बार अकेला नहीं था। यमन की आवाम और सिपाहियों की दुआ की ताकत और अंगूठी का नूर एक हो चुका था। सैफ ने अपनी तलवार फिजा में बुलंद की और अंगूठी की पूरी ताकत को तलवार की धार में समो दिया। शहजादे सैफ ने एक लंबी छलांग लगाई और लहरों के ऊपर दौड़ते हुए अजूजा की कश्ती तक जा पहुंचा। जैसे ही अजूजा ने दोबारा जादू करना चाहा, सैफ की तलवार इसके सीने के आर पार हो चुकी थी। जादूगरनी के जिस्म से कोई खून नहीं निकला, बल्कि काला धुआं और तारियां निकलने लगीं और वो एक चीख के साथ समंदर की अथाह गहराइयों में गर्क हो गई। अजूजा के मरते ही समंदर पर छाया हुआ काला बादल छट गया और सूरज की पहली किरण ने यमन के पानियों को सुनहरा कर दिया। सैफ साहिल पर वापस लौटा, जहां मलका नुसरत और पूरी कौम इसके इस्तकबाल के लिए खड़ी थी। रात के वक्त जब सैफ शाही महल की बालकोनी में खड़ा तारे देख रहा था, वही पुरस्कार नकाब पोश इसने अंतर की शक्ल में मदद की थी। बारह जाहिर हुआ। इसने सैफ को एक कदीम नक्शा थमाया और कहा, सुल्तान, आपने यमन को तो बचा लिया, लेकिन अब आपकी असल मंजिल का आगाज होता है। आपके बाप का वो ताज जिसमें कायनात के 7 राज छुपे हैं, वो यमन में नहीं बल्कि वादी तिलिस्मात में है, जहां इसका पहरा एक ऐसा जिन दे रहा है जो किसी इंसान के काबू में नहीं आया। सैफ ने नक्शे पर हाथ रखा और अज़म से कहा, अगर हक की मंजिल दूर है तो सैफ के कदम भी थकने वाले नहीं हैं। इसी के साथ दोस्तों हमारा सीज़न 2 इख्तिताम को पहुंचा। दास्तान जारी है। सीज़न 3 के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।